Shri Sanjay Singh has demanded discussion over increase in crimes in Delhi. Shri Raghav Chadha has sought discussion over the atrocities of Hindus in Bangladesh and arrest of an ISKCON priest, and Dr. V. Sivadasan has sought discussion on need for a special package to address the plight of people of Wayanad. Honorable members may recall that the issue has been adverted by me on several occasions and at great length as regards operational areas of Rule 267. This was done first on 8th December 2022 and done elaborately later on 19th December 2022. The reiteration has taken place on a number of occasions. Having bestowed attention on these notices, I find they do not call for admittance at my end, and so are not acceded to. Honorable, one second, let me, I'm still saying. Honorable members, you all are undoubtedly cognizant of Murphy's laws, and they indicate anything that can go wrong will go wrong. It appears that there exists a deliberate algorithm to actualize Murphy's laws in this august house, consequently impeding the proper functioning of Parliament. We find ourselves achieving precisely the antithesis of what our Constitution ordains. In a reverence to the framers of our Constitution and the innumerable patriots who made supreme sacrifice, I implore this House to permit me to proceed with the business listed on today's agenda. Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distress. Nothing is going on at all. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country, allow the Parliament to function. Don't make it dysfunctional. I have to inform members that a communication has been received from Dr. Medha Vishram Kulkarni, member stating that she is unable to attend the sittings of the current 266 session of Rajya Sabha from 27th November to 20th December 2024 due to personal reasons. Does she have the permission of the House for remaining absent from 27th November to 20th December 2024 during the current 266th session of the Rajya Sabha? Yeah. Permission to remain absent is granted. Honorable members, I have received 20 notices under Rule 267. Honorable members, the notices of Shri Pramod Tiwari, Srimati Rajni Ashok Rao Patil, Srimati Phulo Devi Netam, Shri Anil Kumar Yadav Mandadi, Dr. Syed Nasir Hussain, Shri Akhilesh Prasad Singh, Shri Vaiko, and Srimati J.B. Mathia Risam have
demanded discussion on the allegation of corruption and wrongdoings against Adani Group. The notices of Sri Ramji Lal Suman, Sri Javed Ali Khan, Sri Neeraj Dangi and Sri A.A. Rahim have demanded discussion over recent violence and law and order situation in Sambhal, Uttar Pradesh. The notices of Sri Ajit Kumar Bhuyan and Sri Tiruchi Shiva have demanded discussion over law and order situation in the state of Manipur. The notices of Sri Anil Kumar Yadav Mandadi, Sri Neeraj Dangi, Sri Imran Pratap Gadi have sought discussion on the recent controversy regarding Ajmer Sharif Dargah in Rajasthan. Sri Sanjay Singh has demanded discussion. जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो उसका पासपोर्ट जब्त करके रख लीजिए, हिंदुस्तान छोड़ के भागने नहीं पाएगा। आप वो करना नहीं चाहते, आपको पकड़ना है विपक्ष के नेताओं को बिल पर। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, चुनाव हारने की गाथा बता रहे थे गृह मंत्री जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई, बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े, तमिलनाडु में 0 सीट आई, 84 में लड़े 0 सीट आई, 89 में लड़े 0 सीट आई, 91 में लड़े 0 सीट आई, 96 में लड़े 1 सीट आई, 2001 में लड़े 4 सीट आई, 2006 में लड़े 0 आई, फिर 2011 में लड़े 0 आई, 2016 में लड़े 0 आई। 41 साल 42 साल टू डू इट द बिल। आप पे कितना बोला इन लोगों ने। यहां पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। देखिए आप बोले रहे हैं और एक ही बात को दिल्ली के बिल पे बोलने ना करें, दिल्ली के बिल पे बोलिए। यहां ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए। 2012 में 10 साल पहले तो बिल है तो दिल्ली का बोलिए। गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पे लड़े, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई। जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो उसका पासपोर्ट जब्त करके रख लीजिए, हिंदुस्तान छोड़ के भागने नहीं पाएगा। अब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। जैसे आपातकाल का रोना आज तक रो रहे हो ना, ऐसे ही रोना रोगे जब यही कानून आपके खिलाफ होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मान्यवर, आप सारी जानकारी रख लीजिए किसी अपराधी के बारे में, उसके बाद वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग गया। जिस देश के साथ आपकी प्रत्यार्पण संधि नहीं है, वहां से इन लाखों करोड़ के लुटेरों को बुलाओगे कैसे हिंदुस्तान? कैसे बुलाओगे आप? मैंने एक सुझाव सदन में दिया था और माननीय गृह मंत्री जी हैं यहाँ पे,
मैं चाहूंगा आप वो संशोधन कीजिए, कानून लाइए इस देश में। 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70% बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए। माननीय अध्यक्ष जी, माताओं के नाम से। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, ये कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था, पहले रोक लिया गया, ये सब बातें तो मैं बाद में बताता हूं। परंतु ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, ये कोई ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, कई ऐसी चीजें हैं जो हुई। आज मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जनधन योजना चालू करी, बैंक अकाउंट खोलने का अभियान चालू किया, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70% बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए। माननीय अध्यक्ष जी, माताओं के नाम से आज महिला सशक्तिकरण हुआ। सारी योजनाओं का जो पैसा जा रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई, आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? माननीय सदस्य प्लीज, मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं? माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वो महिला के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। और जब एक घर में एक शौचालय नहीं होता है तो मान्यवर, सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। मान्यवर, शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। 11 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी ने पहले 5 साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख सदन की सहमति हो तो इस विधेयक के प्रस्ताव को पारित होने तक और चर्चा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने, किसका एम्पावरमेंट हुआ? ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनने से माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान हुआ, उनका सशक्तिकरण। 10 करोड़ परिवार धुएं से युक्त थे। कंधे और टहनियां जलाकर आंख का नेत्रमणि खत्म हो जाता था, फेफड़े फाइब्रोसिस से भर जाते थे। 10 करोड़ घरों में एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देकर माताओं का सशक्तिकरण करने का काम किया। 3 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर दिया और वो घर माता के नाम से करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, 12 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं था। अब जो समाज के अंदर रहते हैं, जो जमीन को जानते हैं, उनको मालूम है कि घर में पीने का पानी नहीं है तो पीड़ा सबसे ज्यादा किसको होती है, किसको ज्यादा तकलीफ होती है। घर में पीने का पानी नहीं है तो घर की
माता को ही तकलीफ होती है। 12 करोड़ परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी। हर घर के अंदर 80 करोड़ लोगों को हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। जब चूल्हा नहीं जलता है ना, मान्यवर, बच्चे भूखे रहते हैं, तो सबसे बड़ा चूल्हा तो नहीं जलता है मगर माँ का दिल जलता है। मान्यवर, माँ का दिल जलता है। ये भूखे परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले। मान्यवर, 3 करोड़ महिलाओं को मातृवंदना योजना के तहत फायदा पहुंचाया। मान्यवर, लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, पेड मैटरनिटी लीव देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। और एम्पावरमेंट क्या होता है माननीय अध्यक्ष जी? आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले पायलट में महिलाओं की संख्या 5% है, भारत में 15% है और ये 10 साल में बढ़ेगी। इसको एम्पावरमेंट। मान्यवर, हम ये जो बिल लेकर आए हैं, मान्यवर, ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं। महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा है, मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है